Hello everyone, this is day number 24 and this is data sufficiency part 2 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are starting with questions on data sufficiency. We have already done a lecture on data sufficiency, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है, wherein we have discussed the basics approach of looking at any question on data sufficiency, उसको एक बार ही देख लेना, फिर इस पे आ जाओ. देखो, for 5 children with ages A less than B less than C, फिर इस तरीके से given है. A is less than B, B is less than C, C is less than D, D is less than E. So they are in an ascending order. Any two successive age differ by 2 years. It means these are all consecutive numbers. A, B, C, D or E, these are ages, and the gap between any two of them is basically 2. तो ये एक तरीका है बोलने का कि these are consecutive numbers with a gap of 2. Okay, how do you look at a question on data sufficiency? So you basically look at question. क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? यंगेस्ट होगा ए. इसका एज क्या है? और आपके पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है. आप स्टेटमेंट नंबर 1 को यूज करो और देखो क्या आप इसे आंसर कर पा रहे हो. उसके बाद आप स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाओगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करोगे. चलो देखते हैं. व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट ए, एंड वी नो विद दिस डेटा that since these are consecutive numbers, तो यहां पे अगर मैं बात करूं b की, तो मैं b को ऐसे भी लिख सकता हूं a plus 2. c can also be written as a plus 2 plus 2. e can also be written as a plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. मतलब जो मिनिमम एज है उस पे 2 2 2 2 अगर ऐड करोगे तो फाइनल वाले का एज आ जाएगा. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन द एज ऑफ द एल्डेस्ट विच इज e is 3 times the youngest. So e is equal to 3a. The age of the eldest is equal to 3a, and we also know from here that e can also be written as a plus 2 2 2 2 which is 8. यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है e की 3a, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है e की a plus 8. आप दोनों को इक्वेट कर दो. दोनों को इक्वेट करोगे क्या आएगा? 3a is equal to a plus 8 और 2a is equal to 8, where a becomes 4. अगर a की वैल्यू 4 है, पूछा क्या व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? क्या आंसर हो गया? यस. पुट अ टिक मार्क. Now this tick mark indicates that statement number 1 is sufficient to answer this question. Now we look at statement number 2. The average age of the children is 8 years. So out of A, B, C, D and E, the average age of these children, 5 children, is basically 8 years. और आपके पास एक basic सी understanding है regarding average, that for consecutive set of numbers with equal gap, average is always the centered value. क्या ये equal gap पे numbers हैं? Yes. जैसे 1 2 3. So 2 is always going to be the average of 1 2 and 3. 1 2 3 4 5. 3 is always going to be the average of 1 2 3 4 5, because these are consecutive set of numbers with equal gap, and middle number is always the average. Middle number यहाँ पे क्या है? C. C की वैल्यू कितनी गिवन है? 8. अगर C की वैल्यू 8 है, and we also know these are separated with a gap of 2, so this has to be 6. और अगर ये 6 है तो ये 4 हो जाएगा. इससे भी आप A की वैल्यू निकाल पा रहे हो, and A की वैल्यू क्या है? The average age of the children is given, and A basically is the age of the youngest. So using statement number 2 also, we can get to our question, the result of our question. The question can be answered using one of the statements alone. No. The question can be answered by using either statement alone. Yes, absolutely. Option B is our correct fit here. Moving on. Now, previous question was a data sufficiency question based on the concept of average. ये वाला जो question है, this is again a data sufficiency question based on the concept of blood relation. All right, which is part of logical reasoning. चलो देखते हैं कैसे ऐसे करना है. There are 5 members A, B, C, D, E in a family. What is the relation of E to B? E और B का क्या relation है? E to B का क्या relation है? All right. Now, if you look at these options, तो आपको दिख रहा है there are more than one statement, two statements, चार statement given है. आप हमेशा statement से start करो, option से. One common आ रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है. तो 1 and 3 को तो आप चेक कर ही लो. 1 का डेटा क्या बोल रहा है? A and B are married couple.
So A is married to B. I don't know the gender of any of them. Okay. 3 क्या बोल रहे हैं? E is D's son. E और D यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉटेड नहीं है. So D मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ. E is D's son. So प्लस मार्क. ये रिलेशन है. अब अगर इस डेटा पे मैं स्टेटमेंट नंबर 2 यूज करूं, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? D इज द फादर ऑफ C. D इज बेसिकली द फादर ऑफ C. तो C का भी जेंडर आई डोंट नो, बट D का जेंडर आई नो. बट द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E टू B? क्या यहां से आप E और B को रिलेट कर पा रहे हो यूजिंग 1, 2 एंड 3? नो. नाउ I'll try to remove this part. ये क्यों रिमूव कर रहा हूं? Because this was the data of statement number 2. अब मैं यूज करूंगा statement number 4. Statement number 4 is basically A and C are sisters. A and C are sisters. That means B has to be the male here. Even now we are not able to connect. तो इससे भी आंसर नहीं हो रहा है. चलो, what if I use the second statement because all 4 are sufficient. If I take this, so D is the father of C. D becomes the father of C, and we know D and E are also related. So E is basically here. Now if you look at this data, so D is the father of A, C and E. What is the relation of E to B? E to B का क्या relation है? In-laws. ये आप फिगर आउट कर पा रहे हो ओनली व्हेन यू यूज ऑल द 4 स्टेटमेंट्स. ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. बट यू नो, अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ जाए, द बेस्ट वे टू गो अहेड विद सच प्रॉब्लम इज यूजिंग द ऑप्शंस. ऑप्शन में देखो क्या कनेक्टिंग पार्ट है. जैसे 1 और 3 दोनों में कॉमन था, तो आई हैव यूज्ड द डेटा ऑफ 1 and 3 बिकॉज ये तो मिनिमम यूज करना ही है. देन आई यूज्ड 2 से चेक किया, आंसर नहीं हुआ, सो आई रूल दिस आउट. देन आई यूज्ड स्टेटमेंट नंबर 4 को भी यूज किया, 2 को एलिमिनेट करा, फिर भी आंसर नहीं आया, तो आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन. नाउ द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव इज taking into consideration all the 4 statements together. So I assumed all 4 together, and with all 4 together I got to a result of relationship of E and B. Therefore we are marking option C, which is all 4 statements together are sufficient to answer the question. Now very interesting question based on the concept of integers पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज पार्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज P प्लस Q माइनस R ग्रेटर देन P माइनस Q प्लस R, वेयर P, Q and R all 3 are integers. And what are integers? Negative value, 0 and positive values. So -2, -1, 0, +1, +2 and so on. Continued. These are all integer values. ठीक है. P माइनस क्यू इज पॉजिटिव. ओके, एक और कॉन्सेप्ट है, उस पे बात कर लेते हैं. When we are dealing with integers, अगर मैं बोल रहा हूं A माइनस B, A माइनस B, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड A इज ग्रेटर देन B. अगर आपने ऐसा करा कि आपने 2 एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करा, बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स, वो नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं. अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 से आगे आ जाए. अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस जो पहला वाला एलिमेंट है वो बड़ा एलिमेंट है. ऑल्सो अगर आपने यहां पे किया P माइनस क्यू और इसका रिजल्ट मान लो नेगेटिव आ गया, P माइनस क्यू किया और इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इट मींस Q is greater than P. The second element is greater. पॉजिटिव पे जो हो रहा है उसका ही रिवर्स होगा नेगेटिव पे. ये बात क्लियर है? ओके. अभी देखो जैसे यहाँ पे गिवन है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो इस एक सेंटेंस को ही देखते हुए आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? दैट P माइनस क्यू अगर पॉजिटिव है, इट सिंपली मीन्स P इज ग्रेटर देन Q. आई नो दिस फॉर श्योरिटी. ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आएंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आप ये फिगर आउट कर पा रहे हो क्या? 2 एलिमेंट का डिफरेंस है, बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स. अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, इट मींस 100% दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज अ ग्रेटर वैल्यू देन द सेकंड एलिमेंट. ओके, P माइनस R इज नेगेटिव. अगर नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस
R is a greater value than P. ये बात भी समझ में आ रही है, क्लियर है? चलो अभी मैं इसको हटा देता हूं और अब एक बारी क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ध्यान देना, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लिया बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन दिस। तो अगर ये इसको मैं A कंसिडर करूं, इसे B कंसिडर करूं, समझना जरा, उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। इफ आई कंसिडर दिस टू बी A, दिस टू बी B, और बोला जा रहा है इज दिस ग्रेटर देन B, इट मींस अगर मैं A माइनस B करूं, द रिजल्ट शुड गिव मी A बीइंग ग्रेटर देन B। यही होना चाहिए। चलो देखते हैं, या पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, इट मींस A इज ग्रेटर देन B। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर, और इस पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं माइनस P माइनस माइनस प्लस क्यू माइनस प्लस माइनस आर। ओके, सो प्लस P minus P ruled out. Then Q and Q, this becomes 2Q minus 2R, और this becomes 2Q minus R. अब देखो Q minus R क्या इंडिकेट करेगा कि अगर Q R से बड़ा है, if I know that Q is a greater value than R, then 100% this is going to be positive. ये कब पॉजिटिव आएगा? Only when Q is a greater value than R. When Q is a greater value than R, then it will be a positive result, I know. If not, it is going to be a negative result. So इसका आंसर जो होगा वो yes या तो no पे आएगा। चलो अब देखते हैं। P minus Q is positive, it means P is greater than Q. क्या इससे आंसर हो पा रहा है? No, because we need R. Rule out कर दो। P minus R is negative, it means R is greater than P. इससे भी आंसर नहीं हो पा रहा है, रूल आउट कर दो। अब इसे कंबाइन करो। एज सुन एज यू कंबाइन, यू गेट द डेटा एज P इज ग्रेटर देन Q एंड R इज ग्रेटर देन P। अगर R ग्रेटर देन P है, दैट मींस R इज आल्सो ग्रेटर देन Q। तो यहां पे Q माइनस R का रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ये बात तो समझ में आ रही है, बिकॉज वी नो Q इज अ स्मॉलर वैल्यू। अगर Q छोटा है और R बड़ा है तो इसका रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा। और यहां पे क्या पूछा गया था? इज दिस ग्रेटर देन दिस? अगर ये ग्रेटर होता तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए था। बट यू आर एबल टू आंसर दिस व्हेन यू हैव दिस डेटा। आप इसे आंसर तो कर पा रहे हो ना कि नो दिस इज नॉट ग्रेटर। यू आर एबल टू आंसर दिस विद अ नो। आपको श्योरिटी है कि ये ग्रेटर देन नहीं है। और ये श्योरिटी कब आ रही है? जब आपने इसको यूज किया। So you have used both the statements. The question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered using either statement alone. Option C is our correct fit here. Based on certain concept. बहुत ही basic सा concept है, इसको बस ध्यान में रखना। बार बार repeat कर रहा हूँ। दो element को subtract किया, अगर result positive आ रहा है, it means the first one is a greater value than the second one. अगर result negative आ रहा है, it means the second element is a greater value than the first element. Moving on. This is again a question from the topic set theory, but it is asked as part of data sufficiency. क्या आप इसे ट्राई कर सकते हो? Let's give this a try quickly. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन अ पार्टी 75% took टी। तो देखो इस तरीके से पहले तो डायग्राम बनाते हैं। टोटल यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा रिप्रेजेंटिंग टी एंड दिस इज 75. ओके, 60% took कॉफी एंड 15% took both टी एंड कॉफी। मतलब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होगा ही होगा। कॉफी हाउ मेनी? 60 and 15% took both tea and coffee. All right. No one taking milk, ये एक अलग वैरायटी आ गई। Takes tea. तो मिल्क और टी ओवरलैप नहीं करेंगे। So let's keep it to here. So मिल्क यहां पे। All right. Each person takes at least one drink. देखो जब आप कोई सेट रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे तीन एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहे, 3 वेराइटीज ऑफ ड्रिंक आर बीइंग डिस्कस्ड। नो वन और ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक का ये मतलब है, ये जो नन वाला पार्ट है जो कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, दिस इज बेसिकली जीरो। नोबडी टेक्स एनी अदर ड्रिंक अदर देन दीज थिंग्स। ठीक है, तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल आप ऐसे ऐड करोगे, पूरा टी ऐड कर लो, कॉफी ऐड कर लो
और मिल्क ऐड कर लो, टोटल आ जाएगा. दैट इज द टोटल बिकॉज नन कुछ है ही नहीं. Okay, how many person attended the party? This is basically the total number of members attending the party. 50 persons took milk. तो अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 यूज करूं, मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा. दिस इज 50. बट व्हाट अबाउट दिस डेटा? अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूँ? मैं नहीं कर पा रहा हूँ. सो व्हाट आई कैन डू मैक्सिमम, ये 75 है, ये 15 है, तो ये 60 हो जाएगा. ये यहाँ पे पूरा 60 है, ये यहाँ पे 15 है. अगर ये कुछ कॉमन कर रहा होगा तो कॉमन बिटवीन मिल्क एंड कॉफी, ये आ जाएगा 45 दिस पार्ट. सो दिस इज बेसिकली 45 माइनस cm एंड दिस m हियर इंडिकेट्स ओनली मिल्क. ये पार्ट अगर आप ध्यान दो, है ना. चलो, 50% टुक मिल्क, इससे ये आंसर तो नहीं बन रहा है ना. नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो पूछा गया है, इज 5 times द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली. मिल्क ओनली. ओके, टोटल इज बेसिकली इक्वल टू 5 times ऑफ मिल्क ओनली. ओनली मिल्क. ओके, टोटल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? टोटल आप अगर सोच के देखो, नॉर्मली ये पूरे कॉफी को कंसिडर करो. पूरे कॉफी का मतलब क्या है? 60. ये पूरा कॉफी अगर आप कंसिडर करते हो तो आपने 60 कंसिडर कर लिया. अब क्या यहां पे दिख रहा है? 60. दिस इज दिस पार्ट. इस 60 को भी कंसिडर कर लो. प्लस क्या आएगा? दिस ओनली मिल्क. ओनली मिल्क इज रिप्रेजेंटेड बाय m. इसे भी कंसिडर कर लो. एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5m. और 120 इज बेसिकली इक्वल टू m उस तरफ चले जाएगा 4m. और m इज इक्वल टू 30. अगर m की वैल्यू 30 है, आपको पता है टोटल क्या है? 5m. तो टोटल वुड बी 150. पूछा क्या आपसे? हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द पार्टी? दिस इज सॉल्वेबल यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन, व्हिच इज 150. क्लियर है क्या? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन. यस, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट फिट हियर. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. अगर आपने सेट थ्योरी नहीं कवर किया है तो चैनल पे आपको 30 डेज प्लानर पे ही मिल जाएगा, उसे कवर कर लेना. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स एज वेल एज 3 वेरिएबल्स. मूविंग ऑन. दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D एंड 3D नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स बेसिकली. देखो, एज ऑफ P एंड Q इज लेस देन 100. लेस देन 100 मतलब 1 to 99 हो सकता है. बट मोर देन 10, मोर देन 10, लेस देन 100 का मतलब है 11 to 99 के बीच में कुछ भी आएगा. एंड एनी नंबर बिटवीन 11 to 99 इज बेसिकली अ 2 डिजिट नंबर. और 2 डिजिट नंबर के बारे में अगर आपने लेक्चर नहीं अटेंड करा है तो मैं एक बार रफ में बता देता हूँ. बट आई गेस अगर आप यहाँ पे हो तो वो लेक्चर तो आपने अटेंड किया होगा. 2 डिजिट नंबर्स इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो. जैसे मान लो आई वांट टू रिप्रेजेंट 14, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा T and U, the digit at the tens place, the digit at the unit place. So I'll write this as 10T plus U. This is one of the representation. अब देखो कैसे काम करेगा ये. 10 into 1 is 10 plus 1 into 4 is 4, which becomes 14. So this is how you represent a 2-digit number. Okay. If you interchange the digits of P, the number represents the digit of Q. What does this indicate? कि अगर आपने P को मान लो नंबर माना है, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे. इफ दिस वाज TU, डिजिट इंटरचेंज करोगे UT बनेगा. दिस इज एक्चुअली द वैल्यू फॉर Q, विच इज द रिवर्स ऑफ इट. क्लियर है? ओके, नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टी फॉर नंबर्स एंड देयर रिवर्स. कोई भी एक 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप अज्यूम करो और उसका रिवर्स अज्यूम करो. जब आप इन दो वैल्यूज को ऐड करोगे, हमेशा इट विल बी सिंप्लीफाइड एज 11T plus U. ऑलवेज. आपको चेक करना है, आप कर लो. चलो इसी फॉर्मेट पे करते हैं. 10T plus U. अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. बट यहाँ पे आई एम केटरिंग टू दोज पीपल हु आर अटेंडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो उनको बस डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं. इसका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो काफी क्विक है. अगर मैं सिर्फ प्रोसेस पे आ जाऊं तो आई लिमिट माई सेल्फ टू दिस पार्ट, दैट आई नो द सम ऑफ
a two-digit number and its reverse is always in the form of 11t plus u. The difference is always in the form of 9t minus u. अब ये कैसे आया उस पे एक बारी काम कर लेते हैं. मेरा नंबर अगर 10t प्लस u है, रिवर्स क्या होगा? रिवर्स होगा 10u प्लस t. अब जरा देखो t और t ऐड करो 11t, u और u प्लस 11u, 11 कॉमन आ गया, दिस इज t प्लस u. बात समझ में आ रही है कि कैसे वो फॉर्म हुआ. बट जब आप 2D लेक्चर कवर कर लोगे तो यू गेट द आइडिया कि हमें क्वेश्चंस को यहां से स्टार्ट करना होता है सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू क्विकली जंप इनटू कंक्लूजन and minimize our steps of solving. Okay, what does it say? What is the difference between their ages? So basically p minus q कर रहे हो या फिर q minus p कर लो, एक ही बात है. The age of p is greater than that of q. क्या इस एक स्टेटमेंट से आप डिफरेंस निकाल पा रहे हो इन दो नंबर्स का? नो. रूल इट आउट. सेकेंड, द सम ऑफ देयर एजेस p प्लस q को अगर ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू आएगी 11t प्लस u. ये तो क्लियर है. दिस इज इक्वल टू 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस. दिस इज इक्वल टू 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस. द डिफरेंस इज 9t माइनस u. अब क्या आप कुछ चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हो? एक बार ध्यान से समझना. 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 11 इस तरफ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ दिस इज 9, दिस इज 6, तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा. सो दिस वुड बी सिंपली 2t प्लस 2u. दिस इज 3t माइनस 3u. और दिस इज सिंपली, अगर आप u को इस तरफ लेके आ जाओ तो दिस वुड बी 5u एंड दिस वुड बी 1t. और t बाई u इज इक्वल टू 5/1. तो t इज टू u का रेशियो क्या आ रहा है? 5:1 आ रहा है. ऑल राइट, वॉट एवर इज द डिजिट एट दिस प्लेस, यहाँ पे जो भी डिजिट होगा उसका 5 टाइम्स होगा जो दूसरा वाला डिजिट है. अब अगर आप इसको ऐसे देखते हो कि दिस इज 5n एंड 1n, तो आप नंबर ऐसे बना सकते हो, द नंबर्स कुड बी 1 5 एंड द रिवर्स ऑफ इट वुड बी 51, और द नंबर्स कुड बी 51 एंड 15. अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो दिस वुड बी 2, और ये क्या बन जाएगा? 5 इंटू 2 10, तो ये 3 डिजिट का नंबर बन गया. ये पॉसिबल ही नहीं है. So only one case is possible. Although we have a ratio, ये अब कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा. और अगर ये मेरे लिए नंबर्स हो रहे हैं p and q, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? देयर डिफरेंस इज 36 एंड दिस इज डूएबल विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन. The question can be answered using one of the statements alone but cannot be answered using the other statement alone. Option A is our correct fit. Just in case मान लो यहाँ पे t और u का रेशियो आ जाता 1:2, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाते. जैसे वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज वुड हैव बीन 12 एंड 21. द अदर पॉसिबिलिटी वुड हैव बीन 2 and 4, तो 48 भी. फिर अगर 3 रखते हो तो इसका डबल 6, 63 भी होगा. अगर 4 रखते हो तो 8, 84 भी होगा. अगर 5 रखते हो तो 10 आ जाएगा. ये पॉसिबल नहीं, और इसके बाद के वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगे. बट ये कब होता? अगर t and u की वैल्यू 1:2 होती. ये नहीं है. आपके लिए t and u की वैल्यू 5:1 गिवन है, तो उस पे काम करना. क्लियर है? तो उसके बेसिस पे आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं. स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन इज सफिशिएंट. ऑप्शन ए इज एक्चुअली योर आंसर हियर. नाउ there are 3 distinct prime numbers whose sum is also a prime number. What are those prime numbers? All right, so we know prime numbers are the numbers having only 2 factors, 1 and the number itself. The first prime number is 2, then we have 3, then we have 5, 7, 11, 13, then we have 17, 19, 23, 29 and so on, 31 also. There are 3 prime numbers whose sum is also a prime number. 3 प्राइम नंबर से इसको ऐड करोगे तो एक और प्राइम नंबर बन जाएगा. ठीक है, आप अगर 2 और 3 ऐड करते हो तो कितने होते हैं? 5. ये एक प्राइम नंबर है. 5 + 7 करोगे तो 12 होगा. ये तो नहीं बन रहा है. चलो अगर मैं इसको ऐड करूँ 3, 5 और 7 को, तो ये 15 हो रहा है. नहीं हो रहा है. 3, 5, 8 और अगर मैं 11 कर लूँ तो ये 19 बन रहा है. ये पॉसिबल हो सकता है. और कुछ बन रहा है क्या? चलो देखते हैं. 5 और 3 8,
8 के साथ अगर मैं 17 ऐड कर दूं तो कितने होंगे, या 19 ऐड कर दूं तो कितने होंगे। इस तरीके से आप कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। या 7 और 5, 5 और 7 12, 12 और अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 2 5 7 अगर मैं ऐड करूं तो कितने हो रहे हैं, 14 हो जाएंगे। ये नहीं होगा, 15 7 5 12, 12 और मान लो 11 ले लिया मैंने, तो ये 23 हो जाएगा। सो मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। ये तो आप फिगर आउट कर पा रहे कि बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल होंगे, तो आप डायरेक्टली इसको विदाउट यूजिंग द स्टेटमेंट तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आप स्टेटमेंट पे आओ, देयर सम इज लेस देन 23, तो जो भी सम आएगा इन नंबर्स का वो 23 से लेस होगा। ओके, सो आई कैन डू मे बी यू नो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इज 8, 8 के साथ और क्या ऐड कर सकते हो, 8 के साथ अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो दिस वुड बी 19। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये इससे लेस भी है 23 से। अगर मैं 5 करूं और 7 करूं, दिस इज 5 प्लस 7 12, 12 के बाद अगर मुझे जाना है तो मुझे अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो दिस वुड बी 23, बट इट शुड बी लेस देन 23, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। So within 23 sum, I guess this is the only possibility that we have. Okay, तो क्या इससे आंसर हो रहा है? डेफिनेटली इससे आंसर हो रहा है। नाउ वन ऑफ द नंबर्स इज 5, इससे क्या आंसर हो पाएगा? देखो, वन ऑफ द नंबर्स इज 5, तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कैसे बताओगे व्हाट आर दोस थ्री नंबर्स? थ्री डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, 5 दोनों केसेस में आ रहा है, तो ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। The question can be answered using one of the statements alone, but cannot be answered using the other statement alone. Option A is again our correct fit, but here we need to have a good command over the working of prime numbers. हमारे FLTs में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कि दो प्राइम नंबर को ऐड करोगे तो एक और प्राइम नंबर बनेगा। जैसे 2 + 3 is 5, then 2 + 11 is 13, these are all prime numbers. 17 + 2 is 19, this is also a prime number. तो इस तरीके से कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिन पे आपको कमांड कर लेना चाहिए, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू फॉलो थ्रू विद द क्वेश्चंस। What are the unique values of x and y where x and y are distinct natural numbers? X upon y is odd and x into y is 12 where x and y are natural numbers. तो देखो x and y की अगर मल्टीपल करो और ये 12 आ रहा है, तो one of the values would be 1 and 12. The next value would be 12 and 1. Next would be 2 and 6 or 6 and 2. Because what are the unique values पूछा है of x and y, तो they have to be different as well. देन 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 4, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3, और कुछ बनेगा क्या? ये नहीं बनेगा। ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं हो पा रहा यूनिकली, रूल आउट कर दो। अब इसे देखो जरा, x एंड y इज ऑड, मेरे पास एक केस बना हुआ है, मैं जरा इसको यूज करता हूं, x अपॉन y इज ऑड। तो अगर मैं इसको छोड़ के रैंडमली स्टार्ट कर दूं तो बहुत सारे केसेस में आ सकता है x एंड y इज ऑड। जैसे both of them are distinct natural numbers, so if I write 3 as x, y as 1, this will also give me an odd number because ये डेटा तो है नहीं मेरे पास, I can use any of it. ये बात क्लियर है? तो मैं इससे, या फिर मैं 7/1 भी कर सकता हूँ, ये भी ऑड नंबर आएगा। क्लियर है? तो इससे भी सिंगल हैंडेडली आंसर नहीं हो पा रहा है। नाउ आई चूज टू कंबाइन द डेटा। एज सून एज आई कंबाइन डेटा, सो आई हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब बस मुझे ये चेक करना है कि कैसे मैं किसको प्लेस करूं और इसका रिजल्ट ऑड आ जाए। तो क्या मैं 1/12 करूंगा तो ऑड आएगा क्या? नहीं आएगा। 12/1 करूंगा ऑड नहीं आएगा। 2/6 करूंगा ऑड नहीं आएगा। 6/2 करूंगा, इट इज 3 विच इज ऑड। 3/4, 4/3, the only possibility that we have is x being 6, y being 2. So it follows the property of 6 into 2, 12, and 6/2, which is 3, odd. Both of these cases are satisfied with only one set. So what are the unique values of x and y? The x value is 6, y value is 2. We are able to answer this only when we have combined both the statements. The question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered using the either statement alone.
ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट फिट. तो आई होप विद दीज क्वेश्चंस आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू टैकल क्वेश्चंस ऑन डेटा सफिशिएंसी. ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करो. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n where m and n are natural numbers? You know natural numbers are 1 2 3 4 and so on. M plus n is greater than m into n and m is a greater value than n. The product of m into n is 24. m into n अगर 24 है तो आप 1 और 24 कंसिडर कर सकते हो, 2 और 12 कंसिडर कर सकते हो, देन 3 एंड 8 कंसिडर कर सकते हो, 4 एंड 6 कंसिडर कर सकते हो. अब इसके ऊपर जैसे ही जाओगे 5 से कुछ भी नहीं होगा तो अगेन ये फिर क्या होगा 6 एंड 4, 8 एंड 3, 12 and 2, 24 and 1. So these many values are there. Definitely इससे तो आंसर होगा नहीं. इस वाले पार्ट को यूज करो, देखो क्या होगा और कमेंट करके बताओ which of them is the correct fit here. I hope आप इसे तो definitely solve कर सकते हैं. So this was all about your day number 24 wherein we have discussed concepts related to data sufficiency part 2. If you have not joined our Telegram channel, this is the link. You can join our Telegram channel for course related information. Classes कब आ रही क्या आ रही ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा. All right. If you wish to enroll into our courses, this is currently the course that we are enrolling into. Here you have certain offers as well. आप ऐप पे जाके चेक करोगे तो this will be close to 2000, wherein we are discussing 10 full length tests in this and the PYQ part is also being covered here. Also, the foundation courses is only for 2027 appearing students, not for 2026. We have stopped the enrollment into our crash course and foundation course for 2026 students. All right. Thank you, everyone. Happy learning. Take care. Bye-bye.